Everyone, welcome to the MRK group of institutions. All of us know that due to the present scenario, it is not quite possible to join real classroom teaching for every student. This hard time can't stop your career growth. So, MRK group of institutions is going to commence the online classes for BSc pass course. I, Darshan Singh, on behalf of Department of Physics, is here to take your physics class. Let us start your physics syllabus. As we know that basically your physics is basically divided into two papers. First one paper is about paper first and paper second. Paper first is about mechanics and second is electricity and magnetism. Today onward we will discuss in detail about the first paper, that one is mechanics. We know that we will start our study from the basic one unit, from the definition of a physics. We know that physics is the branch of science which deals with the physical phenomena. That one branch is known as physics. फिजिक्स की डिटेल स्टडी आपने +1 +2 में की है, जिसके अंदर आपने काफ़ी सारी ब्रांचेस फिजिक्स की पढ़ी हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी है, मैग्नेटिज्म पढ़ी है, ऑप्टिक्स है, कम्युनिकेशन है, फिर आपके पास मोशन था, काइनेमेटिक्स था, डायनामिक्स था. दीज टाइप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस यू हैव स्टडीड इन डिटेल इन योर +1 and +2 classes. Here the branch, that branch which deals with the motion of a macroscopic particle is known as mechanics, and mechanics is further divided into two categories. Let us suppose this one is statics and dynamics. On the basis of the acceleration, we can divide the mechanics into two branches where the acceleration is 0. Here the acceleration is equal to 0 for static branch, and this one is accelerated motion. Accelerated motion. We know that from our +1 +2 study we can define that the acceleration is equal to 0. We know that acceleration is equal to dv upon dt, rate of change of velocity. तो अगर आपके पास ये 0 होगा, this implies either the velocity constant or 0. When the object is with below 0 velocity, then the acceleration is taken as 0, or when the velocity is constant, then the acceleration is also taken as equal to 0. So rate of change of a constant velocity is, differentiation of a constant velocity is also is equal to 0. Means in both the cases, when the velocity is constant or 0, then both the cases the object is that one branch which deals with the detailed study when the object is at rest or when it is moving with the constant velocity, that one is considered under branch, that one is called statics. Here the term is, new term is introduced, that one term is rest, when the object is at rest position and when the object is in motion. If the object, let me explain the term when the object is said to be in rest position and when the object is said to be in motion position. If the object doesn't change its position with respect to its surrounding with the passage of time, then it is said to be at rest position. Let us suppose I am standing in front of you. Let us suppose with the passage of time, if I am not changing my position with respect to time, then it is said to be at rest position. With respect to surrounding means, let us suppose this one green board. With respect to green board, if I am not changing my position, then I am said to be at rest position.
if the object is changing its position with respect to surrounding with the passage of time, then it is said to be in motion. Let us suppose these rest and motion both are रिलेटिव टर्म्स. रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आपके पास एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट कैन बी सेट टू set in the rest as well as in the motion position. Let me explain with the help of a beautiful example. We take an bus which is moving with the speed of 50 kilometers per hour, and passengers are sitting at the position A, B, C and D. Since the bus is moving with the speed of 50 km per hour with respect to surrounding, means it's changing its position with respect to surrounding with the velocity 50 km per hour, तो it is said to be in motion. तो इसको हम क्या कहेंगे, मोशन में कहेंगे. Means if we compare the bus as with respect to its surrounding outside environment, then it is in motion with the speed of or velocity of 50 kilometers per hour. But if we take the inside a bus, the passengers A, B, C, D are sitting at a fixed location. They are not changing their position with respect to each other. So then they are said to be at rest position with respect to each other. Means A is at rest with respect to B, B is at rest with respect to C and C is at rest with respect to D. Means ये आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहे हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, तो इनको हम क्या कहेंगे, रेस्ट पे कहेंगे. तो सेम बस के अंदर जो अंदर का इन्वायरमेंट को अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसको हमने क्या मान के चल रहे हैं, दे आर एट रेस्ट. इफ वी आर कंपेयरिंग विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट, दे आर सेड टू बी इन मोशन. तो रेस्ट एंड मोशन बोथ terms are relative to each other. तो if the object is at rest with zero velocity, तो इसको हम क्या कह के चलेंगे, रेस्ट पोजीशन पे कह के चलेंगे. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो भी वो स्टैटिक ब्रांच के अंदर कंसीडर किया जाएगा. और इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट अस सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं कि बस इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूवमेंट कर रही है, तो उसके केस में हम क्या कंसीडर करेंगे, तो वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं कर रही, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा. जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करेगी तब भी आपके पास किस ब्रांच के अंदर कंसीडर की जाएगी, स्टैटिक ब्रांच के अंदर. और अगर ये जीरो वेलोसिटी मींस एट रेस्ट है तब भी हम कौन सी ब्रांच के अंदर कंसीडर करेंगे, स्टैटिक्स ब्रांच के अंदर. अब सेकंड टाइप है आपके पास डायनामिक्स. डायनामिक्स ब्रांच बेसिकली किससे रिलेटेड है, मोशन, मोशन से रिलेटेड. That one particular branch of science which deals with the motion of a macroscopic object is called dynamics. अगर हम मोशन को कंसीडर करके चलते हैं तो मोशन के अकॉर्डिंग दो we can divide the dynamics into the two branches. First is kinematics and second is kinetics. Kinetic, both, as we know that both are the branches of a dynamic branch, so they are related to the motion of a macroscopic object. But what is the difference between kinematics and kinetic branch? Kinematics is that one particular branch of science in which we deal the motion of the object without the reference of the cause that produce the motion. So means without the reference of force. Example है Kepler's law. Kepler's law you have studied in your class +1 in unit number 6. डिटेल में हमने पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये ऑब्जर्व किया था कि when the different planets are revolving around the sun in elliptical path, उससे रिलेटेड हमने काफ़ी डिटेल में 6th यूनिट में वहाँ पे पढ़ा था. दैट वन कैन बी कंसीडर अंडर द एग्जांपल ऑफ ए काइनेमेटिक्स ब्रांच. तो सेकेंड टाइप है आपके पास काइनेटिक ब्रांच इन विच वी विल डील विद द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद
बाय कंसीडरिंग द फोर्स दैट काज द मोशन। तो इसके केस में लेट अस सपोज ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसके ऊपर आपके पास F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर लग रहा है। इसको मैं दो केस में डिवाइड करके बताता हूँ आपको। केस नंबर ए, इफ F1 इज इक्वल टू F2, अगर F1 और F2 का अमाउंट आपके पास बराबर है तो ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट पोजीशन, मींस ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं कर रहा है। तो अब सेकंड केस हम बी पार्ट इसको क्या एक्सप्लेन करते हैं, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, मींस राइट वन डायरेक्शन का अमाउंट आपके पास ज़्यादा है तो ए अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर हमें पता है कि F1 का अमाउंट कितना है तो हम इस जो ब्रांच होगी उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक्स कहेंगे, जो हमारे पास मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, अगर हमें उसके बारे में कुछ पता है तो दैट वन ब्रांच इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो दिस वन इज अबाउट द बेसिक जो आपकी फर्स्ट यूनिट है बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो मैं आपको पेपर कौन सा ले रहा हूँ, मैकेनिक्स पार्ट ले रहा हूँ। मैकेनिक्स में हम कौन सी ब्रांच पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे जिसको हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स आपके पास जहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो होगा, एक्सेलेरेशन जीरो कब होगा आपके पास, इफ dv/dt इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो होगा तो इसका मतलब या तो बी कांस्टेंट है या फिर बी जीरो है। अगर ऑब्जेक्ट विद जीरो वेलोसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट पोजीशन पे कहेंगे, मींस ऑब्जेक्ट इज डजंट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और अगर आपके पास पोजीशन चेंज कर रहा है बट कांस्टेंट रेट से कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तब भी आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक्स ब्रांच कहेंगे। क्लियर है। फिर हमने सेकंड टाइप कहा था डायनामिक्स, जिसके अंदर एक्सेलरेशन होगा और उसको हमने मोशन के अंदर कंसीडर करके चला। मोशन को मैंने पहले आपको डिफाइन कर दिया है कि ऑब्जेक्ट को मोशन में हम कब कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो मोशन के साथ डील करेगी वो डायनामिक्स ब्रांच है। दैट कैन बी डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर जिस फोर्स की वजह से वो मोशन हो रहा है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, और एक ब्रांच जिसके अंदर मोशन हो रहा है वो किन फोर्सेस की वजह से हो रहा है उसको कंसीडर करेंगे, दैट वन ब्रांच इज काइनेटिक्स। दिस वन इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मैकेनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और हम आज कर रहे हैं, दैट वन इज थोड़ी सी और हम स्टार्ट करेंगे आज। टुडे वी विल आल्सो डिस्कस विद द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट and velocity. Let me explain these one are the basic terms we will use a number of times while explaining the mechanics branch, or we can say the statics or dynamics branch. तो distance क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है और वेलोसिटी क्या है। वैसे तो आप +1 +2 में इसको डिटेल में पढ़ चुके हो, तो लेट मी एक्सप्लेन इन ब्रीफ हियर। दैट वन इज, लेट यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, let us suppose this one is the location A, this one is the location B. You want to go from location A to B, there are the number of different paths. Let us suppose this one is the first, this one is the second, this one is the third one path. When you want to reach from point A to B, if there are number of path followed by the object from reaching point A to B, that one first and third or maybe second, these one are comes under the distance. इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। path followed by the object to reach from one point to the another one point is called distance. And what is displacement? The shortest difference between the 2 points with the particular direction, that one is पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाने के लिए विद पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन का भी पता है, आइदर वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास कौन सा पाथ है,
सेकंड, और डिस्टेंस के लिए हमारे पास कौन सा पाथ है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या आपके पास बराबर होगा। तो हम यहाँ अगर इस डायग्राम फिगर से देखें, फर्स्ट और थर्ड जो पार्ट हैं उनका जो अमाउंट है सेकंड से ज़्यादा है, फर्स्ट एंड थर्ड है वो ग्रेटर देन है सेकंड से। सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। फर्स्ट और थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और क्या हो सकता है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट और थर्ड का अमाउंट आपके पास सेकंड के बराबर हो। तो बराबर वाले केस में मान लीजिए आपके पास फर्स्ट और एंड थर्ड इक्वल टू सेकंड है। इस सिचुएशन को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हियर व्हेन द मैग्नीट्यूड बिटवीन द टू पॉइंट्स इज सेम। तो इन केस ऑफ ए डिस्टेंस यू डजंट नो द why either you are approaching from A to B or B to A, but in case of a displacement you should know you are approaching from A to B or B to A। means यहाँ पे आप A से B की तरफ जा रहे हो तो डायरेक्शन का अगर नहीं पता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, और अगर हमें डायरेक्शन का बारे में पता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसको वेलोसिटी वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वन कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसी पोर्शन तक ही डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टुमारो ऑनवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।